Now we will discuss law of supply curve and change in quantity supply and change in supply. So firstly we will discuss law of supply curve. What is meant by the law of supply curve? Here law of supply is nothing, it's just a simple relationship between price of their own commodity and quantity supply. So or they share the positive relationship, or we can say in simple term the direct relationship between their price and their quantity supply. So direct relationship between price and quantity supply when other things remain constant. Here this thing will, you have to notice that the other things remain constant. मतलब हमने यहाँ पे other factors जो भी थे, आपकी related goods की price, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशंस और सब्सिडीज, आपके नंबर ऑफ फर्म्स, जो अदर फैक्टर्स भी है, जो अदर फैक्टर्स आपकी क्वांटिटी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उन अदर सभी फैक्टर्स को वी विल हियर कंसिडर एज ए कांस्टेंट. So here we assuming the other things remain constant. It is a very important assumptions in your supply curve or in your law of supply. So law of supply tells us the direct relationship between price and quantity supply, where we are assuming that the other things remain constant. Okay, like we can explain the supply curve or law of supply with this table. If price is 1 rupees, then our quantity supply is 10 rupees, 10 units. Sorry, here is 10 units. If price will increase by 1 to 2, then our quantity supply will also increase by 10 units to 20 units. So there is direct relationship, meaning price will increases, and due to this our quantity supply will also increasing. Okay, if price will increase 2 to 3, our quantity supply will also increase by 20 to 30. Or we can draw law of supply curve with this table. This is x-axis. When you are drawing your supply curve, you have to mention what is the which was x-axis, which was y-axis. Okay, or this is origin of point. ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपने एक्स एक्सिस पे किसको मेजर करा है, वाई एक्सिस पे किसको मेजर करा है, यू हैव टू बी प्रेजेंट और यू हैव टू बी एक्सप्लेन टू योर एग्जामिनर. ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी मेजरिंग क्वांटिटी सप्लाई, ऑन वाई एक्सिस वी मेजरिंग प्राइस. ओके, इफ प्राइस इज 1 rupees, और क्वांटिटी सप्लाई इज 10 rupees, 10 units. $30, $40, $50, $60. Okay, at 1 rupees prices, our quantity supply is 10 units. So first point is this, and at price 2 rupees, our quantity supply is 20 units, and 3 rupees 30, 4 rupees 40, and 5 rupees 50. By merging these points, we get supply curve. Okay, I hope law of supply is just simply, we already had discussed in previously discussion, so there is nothing new. I hope you already know about it. So law of supply is the direct relationship between price and quantity supply when other things remain constant. Now we are moving ahead with another topic, that is change in quantity supply and change in supply. This is very very important for your examination point of view, because 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आपसे पूछा जाता है. फॉर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रही हूँ फिर से, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन. सो व्हाट इज मीन बाय द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड व्हाट इज मीन बाय द चेंज इन सप्लाई. देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस कैसा है उसको हम डिस्कस करेंगे. देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू increase and decrease in quantity supply
of a commodity, increase and decrease supply of a commodity in response to, किसकी response में? In response to increase and decrease in its own price, or other things remain constant. Meaning change in quantity supply का meaning simple सा है, अगर उसकी खुद की commodity, मतलब अगर आप if you are producing X goods, then price of X goods will increase or decrease, and due to this if your supply will increase or decrease, that will be considered as a change in quantity supply. देखो यहाँ चेंज वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इंक्रीज भी हो सकता है वो चेंज और डिक्रीज भी हो सकता है. चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एंड ड्यू टू दिस रिस्पॉन्स आपका जो प्राइस है वो भी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है. इसलिए हमने ये बोला है कि अगर प्राइस में चेंज होता है उसकी खुद की कमोडिटी की, और ड्यू टू दिस रीजन और उसके रिस्पॉन्स में अगर उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है और अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो ये कौन सा केस स्टडी बन जाती है? ये केस स्टडी बन जाती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. अब बात आता है इसमें चेंज टू टाइप्स के हैं. कौन कौन से टाइप्स करे हैं हमने प्राइस में चेंज? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, हमने ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को देखा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है. अब हम इसके यहाँ दो केसेस की स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केसेस क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस. आवर फर्स्ट केस इज इफ प्राइस विल इंक्रीज. इफ प्राइस एक्स विल इंक्रीज, then quantity supply will also increase. But here we are assuming that other things remain constant. Other things remain constant. Okay? अब हम इसी स्टेटमेंट को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. लाइक देखो बच्चा, आपकी प्राइस इंक्रीज होने से या प्रोडक्ट की प्राइस, इफ़ यू आर ए प्रोड्यूसर, इफ प्राइस ऑफ योर ऑन कमोडिटी विल इंक्रीज, देन प्रॉफिट पॉसिबिलिटी विल इंक्रीज एंड यू विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर दैट कमोडिटी, एंड दैट विल क्रिएट मोर एंड मोर सप्लाई. सो positive relationship, price increases, quantity supply increase. Here you are assuming that other things remain constant. Maybe government impose your taxes, but here you are assuming other things remain constant. Taxes will not increases, factor of production will price of factor of production will not changing. So here you are assuming only for influence of price of their on commodity. Okay. और आपको एक और बात याद रखनी है बच्चा कि जब भी आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का केस होगा तो उसमें एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन का केस होगा. देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप क्या बोल सकते हो? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का केस भी बोल सकते हैं. केस ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. वाई? अब हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का केस भी ये बनता है. देखो स्टार्टिंग में आपका सप्लाई कर्व है एस एस, ये आपका सप्लाई कर्व है. दिस इज द प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाई. ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाई एक्स. ओके, स्टार्टिंग में प्राइस है P1, एंड योर क्वांटिटी सप्लाई इज Q0. ओके, Q1 कर लेते हैं. ठीक है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन Q1. स्टार्टिंग प्राइस इज P1 and in this response your quantity supply is Q1. Now price will increases. Here the case is increase in price. So if price of their commodity will increase, then quantity supply will also increase. So price will increase by P1 to P2. Then in this response your quantity supply will also increase by Q1 to Q2. Increase in price, increase in quantity supply. So in the first situation your equilibrium is point A.
Now in second situation, when price will increases, your equilibrium is point B, then A to B movement show the extension in your curve. Extension mean आपकी सप्लाई एक्सटेंड हुई है. पहले आपकी सप्लाई कितनी थी? OQ1. नाउ सप्लाई कितनी इंक्रीज हो गई? OQ1 से OQ2. तो एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ? कितना एक्सटेंशन हुआ? Q1 से Q2. एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना किसी चीज का. आपकी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हुई या नहीं हुई? हुई है. तो दिस इज द एक्सटेंशन केस. ओके. और एक और, यहाँ पे आपने कर्व में क्या करा? चेंज करा, मूवमेंट करा. सो द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई केस इज द मूवमेंट अलोंग द कर्व. मूवमेंट अलोंग द कर्व. आप इसी कर्व पे, ऐसे कर्व पे ही मूव करोगे. या तो ऊपर जाओगे, या तो इंक्रीज करोगे, या एक्सटेंशन होगा, या नीचे जाओगे, या डाउनवर्ड करोगे, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो दिस इज द मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? ए से आप बी पे गए हो तो आपने सेम कर्व पे मूव करा, और वो मूवमेंट कैसा है? अपवर्ड मूवमेंट है. ए टू बी इज द मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज अपवर्ड मूवमेंट. तो इसको क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट अलोंग द कर्व. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप क्या बोल सकते हो? मूवमेंट अलोंग द कर्व. अलोंग द कर्व क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आप ए से बी पे सिचुएट करें. ए से बी पे आपने शिफ्ट करा. ए से बी पे जैसे आपने शिफ्ट करा तो आपका मूवमेंट हुआ, पर वो मूवमेंट कैसा हुआ? उसी सेम कर्व पे आपने मूव करा है. ए टू बी आपका मूवमेंट हुआ है अपवर्ड. तो मूवमेंट अलोंग द कर्व, इसी कर्व पे आप मूव करोगे इन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई केस. तो इसमें 3 नेम से आप इसको जज कर सकते हो. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और मूवमेंट अलोंग द कर्व, और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन केस. अब हमारा सेकेंड केस है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी. ये था केस आपका इंक्रीज का. अब केस है आपका डिक्रीज का. इफ प्राइस डिक्रीजेस योर क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीजेस. और सेम अदर things remains constant. ओके. अब इसको भी हम कर्व के थ्रू जज कर सकते हैं. योर स्टार्टिंग सप्लाई SS1. योर सप्लाई कर्व इज SS. हियर इज प्राइस, इज क्वांटिटी सप्लाई, पॉइंट ऑफ origin Y X. Okay. Starting price is P1 and your quantity supply is Q1. डायग्राम थोड़ा एडजस्ट कर लेना मुझे, डायग्राम थोड़ा दिखने में थोड़ा ऐसा हो रहा है. If prices will decreases, what will happen? Prices will decreases P1 to P0. Okay. Now what will happen? Your quantity supply will also decreases and decreases by Q1 to Q0. This is show decrement in your supply or contraction in your supply, or you move A to C and this movement is downward movement. So this is called contraction in supply. This is called extension in supply. यहाँ पे आपकी सप्लाई एक्सटेंड करी है, इसीलिए आपने इसको कौन सा केस कंसिडर करा है? एक्सटेंशन इन सप्लाई. यहाँ पे आपकी सप्लाई डिक्रीज हुई है तो ये कौन सा केस है? कॉन्ट्रैक्शन इन योर सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, छोटा होना. तो यहाँ पे आपकी सप्लाई पहले कितनी थी? OQ1. नाउ योर सप्लाई विल OQ0. तो कम होके आपकी सप्लाई OQ0 हो गई. सो ये मूवमेंट कौन सा है? A to C मूवमेंट. इसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. और A to B में मूवमेंट क्या है?
movement A to B is extension in supply. I hope आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या है, एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या है, और आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी मूवमेंट अलोंग द कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में भी आप सेम सप्लाई कर्व में ही मूव कर रहे हो। ओके, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल मूव अहेड द सेकेंड पार्ट, दैट इज चेंज इन सप्लाई. What is mean by the change in supply? Change in supply means it refers to increase and decrease in supply. Here I am emphasizing only supply word, not quantity supply. Increase and decrease in supply of a commodity in response to other things or in response to change in other determinants. Meaning यहाँ पे हमने जो other determinants जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशंस, नंबर ऑफ फर्म्स जो हमने कांस्टेंट माने थे, उन फैक्टर्स को यहाँ पे हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। और जहाँ यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी को क्या माना था, वेरिएबल माना था, यहाँ पे हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। ओके, वापस मैं आपको क्लियर करती हूँ, चेंज इन सप्लाई में हम अदर फैक्टर्स को वेरिएबल मानते हैं या फिर अदर फैक्टर्स जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं एज ए कांस्टेंट, उसको हम यहाँ पे क्या मानते हैं, चेंजेबल मानते हैं कि उनमें चेंजेस हो रहा है, और इसकी खुद की कमोडिटी की प्राइस को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ओके, सो चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे मैंने वर्ड सप्लाई वर्ड यूज़ करा है बेटा, क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज़ नहीं करा है। यहाँ पे मैंने आपको यूज़ करा है क्वांटिटी सप्लाई वर्ड। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सप्लाई चेंज करा है, क्योंकि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मैंने सप्लाई वर्ड क्यों एम्फसाइज करा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पैटर्न में ही चेंज होता है, यहाँ पे जस्ट क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है। जैसे Q1 से Q2 हुई, आपकी सेम सप्लाई पैटर्न रहता है, सप्लाई कर्व सेम रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज करा है। यहाँ पे आपके सप्लाई कर्व में ही चेंज हो जाता है, वी विल डिस्कस। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ यहाँ पे भी वही दो केस होंगे, इफ इंक्रीज और फेवरेबल चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, फेवरेबल चेंज और इंक्रीज इन अदर डिटर्मिनेंट्स सिंपल सा कर देते हैं। देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज का मीनिंग क्या है। अदर थिंग्स जो हमने कांस्टेंट मानी थी इस वाले फैक्टर में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वाले केस में, यहाँ चेंज इन सप्लाई में हम उसको क्या मानते हैं, चेंजेबल मानते हैं। अब इनमें चेंज तो हो रहा है, बट चेंज कैसा है, फेवरेबल चेंज है या अनफेवरेबल चेंज है, फॉर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। फेवरेबल चेंज का मीनिंग यह है कि जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो फेवरेबल चेंज हुआ कि मतलब अब सप्लाई इंक्रीज होने का फेवर है, और इफ द रिलेटेड गुड्स प्राइस में ऐसा चेंज हुआ जिससे सप्लाई क्रिएट होगी, और इफ द नंबर ऑफ फर्म विल इंक्रीज तो आपका फेवरेबल चेंज है। मतलब अगर ऐसा कोई चेंज जिसके थ्रू सप्लाई क्रिएट होती है तो उसको कौन सा चेंज बोलते हैं, उसको फेवरेबल चेंज कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अनफेवरेबल चेंज मतलब जैसे टैक्सेशन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज हो गए, आपकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई, ड्यू टू दिस रीजन आपकी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो अनफेवरेबल है फॉर योर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो चेंजेस होते हैं अनफेवरेबल चेंजेस, ठीक है। तो फेवरेबल चेंजेस में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा हमने एक चीज कंसीडर करी थी कि आपकी खुद की कमोडिटी यानी ऑन कमोडिटी प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी को चेंजेबल माना था, यहाँ हम प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी को कांस्टेंट मानते हैं। और चेंज किस में करते हैं, जो अदर थिंग्स हमने कांस्टेंट मानी थी इस केस में उसको हम यहाँ पे चेंजेबल मानते हैं। तो प्राइस कांस्टेंट है, मतलब P1 की P1 ही रह रही है प्राइस, ओके। सप्लाई पहले थी आपकी S1,
ओके, अब कोई फेवरेबल चेंज हुआ, फेवरेबल चेंज मतलब टैक्सेशन या तो डिक्रीज हो गए, सब्सिडी या इंक्रीज हो गई, या फिर नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो गए, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस, ड्यू टू एनी रीजन कुछ भी हुआ, आपका फेवरेबल चेंज हुआ, एंड ड्यू टू दिस रीजन योर सप्लाई विल इंक्रीज। क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसीलिए आपका सप्लाई पैटर्न या सप्लाई कर्व विल शिफ्ट S1 S1 टू S2 S2। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या करा, सप्लाई कर्व में ही चेंज करा, आपका सप्लाई पैटर्न चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ड ओनली सप्लाई वर्ड यूज करा है, क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज नहीं करा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पैटर्न चेंज हो जाता है आपका। ओके, दिस इंक्रीमेंट शो और movement and change in supply S1 to S2 due to favorable change in other factors। ओके, अब अनफेवरेबल चेंज का भी केस देख लेते हैं। अनफेवरेबल चेंज में कुछ नहीं है, योर स्टार्टिंग सप्लाईज S1 price is constant, we already assume that price remain constant of their own commodity, quantity supplies। is if there is unfavorable changes, meaning your taxes will increases, your cost of production will increases by increasing your prices of your input, then your supply will also decreases, so your supply का shift backward, और shift होके वो क्या हो जाएगा, नया सप्लाई कर्व हो गया आपका S2 S2, तो आपका सप्लाई क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, शिफ्टिंग इन योर सप्लाई का। तो चेंज इन सप्लाई को मैं कौन सा केस बोल सकती हूँ, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या था, मूवमेंट अलोंग द कर्व, इसमें कर्व एक ही था, उस कर्व पे ही मूव कर रहे थे। किस केस में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में। यहाँ पे आपके कर्व में शिफ्टिंग हुई है, मतलब S1 शिफ्ट होके S2 हुआ है आपका सप्लाई कर्व, S1 शिफ्ट होके S2 हुआ है आपका सप्लाई कर्व। यहाँ पे बेटा आप S2 लिख दो, S0 लिख दो, F5 लिख लो, आपका एड्रेसिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ जस्ट मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज हुई है सप्लाई, और इंक्रीज हुई है और शिफ्टिंग कौन सी हुई है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो शिफ्टिंग कौन सी हुई है, फॉरवर्ड, क्योंकि शिफ्ट होके आगे बढ़ा है सप्लाई का, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई है ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे कौन सी शिफ्ट हुई है, बैकवर्ड शिफ्टिंग ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन शिफ्टिंग इन S1 टू, आप यहाँ पे S0 कर लो अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैम यहाँ पे भी F1 से F2 हुआ है, तो F0 से करोगे ड्यू टू विद दिस आपका ये चैप्टर सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।